एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम मेथड, व्हाट आर द थिंग्स वी टेक केयर व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ income method. Then we will discuss the numerical based on income method. See, income method is that method which measures national income in terms of payment made in the form of wages, rent, interest and profit. Means in income method, income is summation of all factor income. In income method, income is the summation of all factor income. All factor income means summation of wages, rent, interest and profit. Now we have to understand what is a factor income. Whatever the factor owner get by providing their factor is called factor income. For example, by providing labor, factor owner get wages. By providing land, factor owner get rent. By providing capital, factor owner get interest. And by providing their entrepreneur, factor owner get profit as a factor payment. If we add all these factor payment, wages, rent, interest and profit, we are able to calculate domestic income. The summation of all factor is called domestic income. Okay. When we add net factor income from abroad, means NIFIA in this, then it will become national income. Later on we will discuss the detail of this. Here I am telling you all these things in short. Summation of all factor income is domestic income. When we add NIFIA in this, then it will become national income at factor cost. Now question arises, as we discuss in value added method, the summation of all value is GDP at MP, gross domestic product at market price in case of value added method. But when we talk about income method, it means the summation of all factor income is net domestic income or product at factor cost. I am repeating, in value added method, the summation of all value added in a particular economy during a particular time period, you can see in one accounting year, the summation is called gross domestic product at MP, and in income method the summation of all factor income is called net domestic product at factor cost. So you have to understand the difference between different method of calculating national income. The value derived is different, but at the end we will come at the final conclusion of national income. I told you national income is nothing but net national product at factor cost. तो आप जो भी वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू पे फाइनली डिराइव करके आप नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं. In previous lecture, we already discussed the derivation of gross to net, domestic to national and MP to FC. अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो तो वो लेक्चर आप देख लेना. यहाँ पे तो मैंने जस्ट सम अप किया है ये चीज़.
मीन्स इनकम मेथड में जो आपका आंसर आता है, इनकम्स को ऐड करके दैट पर्टिकुलर समेशन ऑफ फैक्टर इनकम इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है ये चीज? व्हेन वी converted domestic to national, we add NIFIA in that particular value, net factor income from abroad, to get national income. Clear है इतना? Now, what is the difference between factor income and transfer income? See, factor income is the income which is get after providing factors or services to producers. Means this is two-sided flow of income or two-sided flow of things. Household provide their resources or the owner of the factor provide their resources to producing sector, and in return they will get the factor income. Means for land they will get rent, for labor wages, for capital interest, and for entrepreneur they will get the profit. But transfer payment is one-sided payment, you can say unilateral transfer, for which we will not do any work for a particular person. For example, any donation, grants from government, old age pensions, unemployment allowance by the government, all comes under transfer payment. For getting these payment, you will not do anything for government or the person who will provide all these payments. Means फैक्टर इनकम के लिए आपको काम करना पड़ता है और वो काम करके या अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करके आपको इनकम गेट होती है। पर ट्रांसफ़र इनकम में आप कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको एज अ फिनेंशियल हेल्प किसी बंदे की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, सर्विसेज मिलती हैं। जैसे मैंने आपको कहा आपको डोनेशन मिली है, तो डोनेशन के लिए आपने उस सामने वाली पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने आपको ओल्ड एज पेंशन दी है, उसके लिए आपने कुछ नहीं दिया। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए हैं, गवर्नमेंट के लिए आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो क्लियर है डिफरेंस दोनों में? फैक्टर इनकम टू साइडेड होती है, यानी कि फैक्टर प्रोवाइड करोगे देन यू विल गेट द इनकम। ट्रांसफ़र पेमेंट में आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, दैट्स वाई ट्रांसफ़र पेमेंट इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और यू कैन से वन साइडेड ट्रांसफ़र। यही चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है। फैक्टर इनकम आर रिवार्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्टर services. Transfer payment are just one-sided payment. No service is rendered in return for transfer payment. Clear है? Then come at classification of factor income. यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है नेशनल इनकम, यहाँ पे लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। टाइपिंग करते समय जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट हो जाती हैं कई बार चीज़ें। प्रीवियस स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज फैक्टर इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आप कंसिडर करते हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, मीन्स आपको कोई कुक मिला हुआ है, कोई रहने के लिए फ्लैट मिला हुआ है, कुछ भी गवर्नमेंट आपकी प्रोड्यूसर की वजह तरफ से या कंपनी की तरफ से आपको जो भी चीज़ें यूज़ करने के लिए मिली हुई हैं, ऑल कम्स अंडर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वो आपकी सैलरी का पार्ट होती हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके प्रोविडेंट फंड के लिए, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, और इट में भी एनी फॉर्म। अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय
or you can say wages of employee. Then pension on retirement, जो बंदा सर्विस रेंडर करता है आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड देन रिटायरमेंट, they will get a pension or a monthly payment. But nowadays this concept is slowly decreasing because in some sector pension is provided. कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे पेंशन मिलती है, बाकी सेक्टर में पेंशन खत्म कर दी गई है. देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, इन प्रीवियस डिस्कशन आई टोल्ड यू old age pension is a transfer payment, not the factor income. Here I am telling you pension on retirement, दोनों में डिफरेंस है. ओल्ड एज पेंशन के लिए आपने गवर्नमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी के लिए कोई काम नहीं किया है. बट पेंशन ऑन रिटायरमेंट आपने भाई 20 से 30 साल सर्विस रेंडर की है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए, और आप उसके बाद रिटायर हो गए हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो कंपनी आपको मंथली जो भी पेमेंट करती है वो क्या कहलाता है? पेंशन. तो पेंशन सर्विस रेंडर करने के बाद, रिटायर लेने के बाद जो मिलता है वो है आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट. और बिना कुछ करे जो गवर्नमेंट की तरफ से या एज अ फाइनेंशियल हेल्प किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलती है वो है ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड अदर थिंग्स. तो यहाँ पे इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना है. नाउ कम एट ऑपरेटिंग सरप्लस. इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज अर्न इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? आप जो भी प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से अर्न करते हो वो आपकी क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस. In simple words, operating surplus is the summation of rent, royalty plus interest plus profit. The summation of rent, interest, profit and royalty comes under operating surplus. See, profit has three parts: dividend, corporate tax and saving of enterprises, or you can say undistributed profit or retained earning. See, कंपनी को जो भी प्रॉफिट गेट होता है उस प्रॉफिट से सबसे पहले क्या देते हैं? वो कॉर्पोरेट टैक्स. देन आफ्टर दैट जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होता है उसमें वो डिसीजन लेते हैं कि कितना पोर्शन शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कितना पोर्शन एज अ रिटेन अर्निंग अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करें. तो प्रॉफिट या तो प्रॉफिट वर्ड होना चाहिए या फिर ये सारी चीज़ें हों. बट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो और उस न्यूमेरिकल में प्रॉफिट गिवन है और डिविडेंड गिवन है तो आपने डिविडेंड को इग्नोर करना है. यू विल टेक द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बिकॉज वैल्यू ऑफ डिविडेंड इज ऑलरेडी एडेड इन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. क्लियर है? यानी कि अगर आपको प्रॉफिट वर्ड गिवन है तो इसकी अगर सेपरेट वैल्यू किसी की दी है तो उसको इग्नोर करना है, उसको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है बिकॉज प्रॉफिट का मतलब क्या है? तीनों का समीशन. नाउ कम एट मिक्स इनकम. मिक्स इनकम is the income of self-employed person. Mixed income refers to the income of self-employed persons using their labor, land, capital and entrepreneurship to produce goods and services. These income are mixed in terms of wages, rent, interest and profit. यानी कि चारों इनकम का समेशन होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का in mixed income. That is why it is called mixed income. See, आपके अकाउंटेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, अपना काम है उनका, टीचर हैं, लॉयर हैं,
ठीक है ना। इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि किसी कंपनी का काम ना करके अपना खुद का काम करते हैं, तो इनकी इनकम कहाँ चार्ज होती है? एज अ मिक्स इनकम। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपकी इनकम एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंपनसेशन में कंसिडर की जाएगी। बट अगर आपका खुद का काम है, आप किसी और की जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे आएगा? मिक्स इनकम में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फैक्टर इनकम का समेशन क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ come at the derivation part. I told you national income means net national product at FC. In this we get net value, net, तो depreciation का कोई यूज नहीं है. This is domestic to national and FC, we already have FC in which net domestic product at FC. तो हमें सिर्फ क्या करना है? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है. जब आप डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हो तो क्या ऐड करते हो? निफियर. मीन्स इनकम मेथड में अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो क्राइटेरिया क्या होगा? सारी जो फैक्टर इनकम है उसका समेशन प्लस निफियर. क्योंकि फैक्टर इनकम का समेशन क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसमें जैसे ही आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे यू विल गेट नेशनल इनकम. अगर आपको इनकम मेथड में जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या करोगे आप. आपके पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब आपने क्या करना है? नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना है. रिवर्स कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हैं. नेट को ग्रॉस में अगर कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन क्या करोगे? ऐड. सी, ग्रॉस से नेट में जब हमने कन्वर्जन किया था तो डेप्रिसिएशन क्या किया था? माइनस. सिमिलरली नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड. जब हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज किया था तो हमने एनआईटी माइनस किया था. अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा. हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्जन कर रहे हैं तो एनआईटी क्या करेंगे? इसमें ऐड. क्लियर है? देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, यानी कि आपको नेशनल नहीं निकालना है, सिर्फ डोमेस्टिक निकालना है और नेट निकालना है. सी, आपको यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही मिलता है, एफसी पर होता है. एफसी को सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है आपने? एमपी में. मीन्स आप क्या ऐड करोगे? सिर्फ इसमें एनआईटी, क्योंकि दोनों नेट है. यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे भी नेट है. लास्ट में हमारे पास यहाँ ग्रोथ था, यहाँ नेट था, दैट्स वाई वी यूज डेप्रिसिएशन. लेकिन यहाँ पे गिवन में भी नेट है और कैलकुलेशन में भी नेट है. सिर्फ कन्वर्जन क्या है? एफसी टू एमपी. एफसी टू एमपी कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी क्या करते हैं? ऐड करते हैं. नाउ कम एट प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड. कुछ प्रिकॉशंस तो सेम ही हैं फॉर ईच एंड एवरी मेथड, वेदर इट इज़ वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. फर्स्ट वन इज ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. यानी कि ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं. सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अगर सेकेंड हैंड गुड्स को आप बेचते हो तो उसकी भी इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते. सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अगर कोई आप शेयर, बॉन्ड्स वगैरह बेचते खरीदते हो तो उससे जो इनकम जनरेट होती है, सेल और परचेज से जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको कंसीडर नहीं करना है. जो आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है उसको हम इनकम मेथड में कंसीडर करते हैं. ध्यान रखना, 10 रुपीज़ का शेयर 50 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया, ये जो 40 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हुआ है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. अगर आपको 10 रुपीज़ के शेयर पे
₹2 डिविडेंड मिला है, इट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। यानी कि जो डिविडेंड मिला है उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, और जो वैल्यू डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट हुआ है उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। सी, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज सच ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इससे हमने किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं किए हैं। इसी तरह से लॉटरी है, कैपिटल गेन है, कुछ भी इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज से अगर कोई इनकम होती है उसको भी हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। देन इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर ओनर ऑक्युपाइड हाउस है, यानी कि ऐसा घर है जिसमें आप खुद रहते हो, तो उसका एस्टिमेटेड किराया निकाल कर नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। यानी कि आप देखोगे उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपके जैसे हाउस का क्या रेंट है, उस वैल्यू को एस्टिमेट करके नेशनल इनकम में ऐड करोगे। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। ऐसे गुड्स जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए कोई प्रोड्यूस करता है, तो उनको भी नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अगर वो खुद के लिए प्रोड्यूस नहीं करता तो किसी और से परचेज करता। इट मीन्स दिस थिंग एड वैल्यू इन एन इकोनॉमी। Indirect taxes like sale tax, excise duty, GST and all tends to increase MP यानी कि market price of goods and services। किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स हो वो गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट प्राइस को इंक्रीज करता है। These are included in estimation of national income at MP। टैक्सेस को हम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। फैक्टर कॉस्ट में हम किसी भी टाइप के टैक्स को कंसीडर नहीं करते हैं। देन कम एट नेक्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर ऑल कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। यानी कि जो आपका प्रॉफिट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वही जो मैंने आपको पीछे बात बताई, अगर प्रॉफिट गिवन है तो आपने इनको सेपरेटली ऐड नहीं करना है। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है देन आपने इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। देखिए, आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और यू कैन से सैलरी ऑफ एम्प्लॉय को ऐड किया था नेशनल इनकम में, और इनकम टैक्स उसी सैलरी में से दिया जाता है, इसलिए इनकम टैक्स को हम अलग से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, टैक्सेस ऑन वाइंडफॉल गेन आर पेड नॉट आउट ऑफ करंट इनकम बट आउट ऑफ पास्ट सेविंग ऑफ टैक्स पेयर। These are not to be included in estimation of national income। As I already told you, किसी भी टाइप के टैक्स को हम इनकम मेथड में कंसीडर नहीं करते हैं while calculating national income at factor cost. Then come at the summation or the things which is important for numerical point of view. Corporate tax and distributed profit, डिविडेंड, तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या गेट होता है? प्रॉफिट। देन रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, यानी कि या तो आप प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट को ऐड करो 4 + 5 + 6 और 7, या प्रॉफिट को हटाकर इन तीनों को अलग से ऐड कर दो, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इनको ऐड करते हो, यू विल गेट ऑपरेटिंग सरप्लस। Next income, income of self-employed people. Wages and salaries in cash, in kind, contribution to social security scheme, pension fund, इन चारों को ऐड करते हो तो क्या बन जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर है? यानी कि अगर कहीं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है और इनमें से भी कोई पार्ट दिया हुआ है
तो अगर आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड करने जा रहे हैं तो अगर कोई सब पार्ट गिवन है उसको कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर है? सी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फाइंड आउट नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। 4 कंटेंट मैंने इसमें कंसिडर किए हैं। आपको गिवन इंफॉर्मेशन से नेट डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेट नेशनल इनकम निकालनी है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेट डोमेस्टिक इनकम तो हमें देखना है डेटा किससे रिलेटेड है, इनकम मेथड से है, एक्सपेंडिचर से है या वैल्यू एडेड से। एज यू कैन सी दिस इज द डेटा ऑफ इनकम मेथड, क्योंकि इसमें देखिए आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, आपके पास मिक्स इनकम है, आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस है, आपके पास कंपनसेशन है। तो इसको देख के हमें पता चल गया कि डेटा नेशनल इनकम का है और कौन सा मेथड वाला है, इनकम मेथड। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक इनकम। इसका मतलब क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में इनडायरेक्टली आपको कह रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, क्योंकि इनकम का डेटा गिवन है। सी नेट डोमेस्टिक इनकम क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। हमारे पास फैक्टर इनकम क्या है, मिक्स, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड देन कंपनसेशन। तीनों को ऐड करेंगे, 2800 प्लस 10,000 प्लस 24,000 वी गेट 62,000 करोड़। क्लियर है? देन सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, यानी कि आपने क्या करना है, आपने अभी निकाला था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी और अब आपको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, क्योंकि अभी एमपी वर्ड तो यूज किया ही नहीं है। तो इनकम का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट। नेट से बाकी चीजें सेम है, देखिए डोमेस्टिक डोमेस्टिक, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, एफसी एफसी। आपको क्या करना है, नेट वैल्यू को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में। जब भी हम नेट वैल्यू को ग्रॉस में या ग्रॉस को नेट में चेंज करते हैं तो कौन सा फैक्टर कंसीडर करते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर आप ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करते थे तो डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, ऐड। यानी कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। यानी कि नेट को आपने किस में कन्वर्ट किया, ग्रॉस में। 62,000 हमारी वैल्यू आई थी, डेप्रिसिएशन इज योर 1700 प्लस 1700 we get 63,700 crores. This is our gross domestic product. Then come at next, third part, net national income. Net national income और national income means the same. वर्ड कुछ भी लिखिए, आपने चीज़ें समझनी है एक्चुअल में है क्या। नेशनल इनकम लिखा होता तो भी वो नेट ही होती। नेशनल इनकम मीन्स क्या है, नेशनल इनकम मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको पता है इनकम मेथड में जो आपका आंसर निकलता है वो क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। और आपको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी और यू कैन सी नेशनल इनकम। तो यहाँ पे एफसी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, नेट सेम है, सिर्फ क्या कन्वर्जन करना है, डोमेस्टिक टू नेशनल। डोमेस्टिक टू नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करते हैं, निफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सी नेट डोमेस्टिक इनकम और यू कैन से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस निफिया।
NIFIA is your 300. 62,000 plus minus 300 plus minus minus, इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 62,000 minus 300. 62,000 में से 300 लेस किया यू विल गेट 61,700. क्लियर है? देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. आपका नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यू कैन से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, आपको नेट नेशनल डोमेस्टिक निकालना है. हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक. यहाँ पे मैंने नेशनल लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप पहले नेशनल निकाल लीजिए, देन वी विल कैलकुलेट द डोमेस्टिक. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अभी आपने जो नेशनल इनकम निकाली थी ये किस पे निकाली थी? फैक्टर कॉस्ट पे. अब आपने फैक्टर कॉस्ट की हेल्प से क्या निकालना है? मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट से अगर हम मार्केट प्राइस में कन्वर्जन करते हैं तो हम NIT प्लस करते हैं. NIT क्या हो जाएगा? प्लस. नेट नेशनल इनकम प्लस NIT, तो ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्लियर है? हमारे पास वैल्यू आई थी 61,700. आपको NIT क्या होता है? NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. वी ऑलरेडी डिस्कस द डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर्स. तो आप न्यूमेरिकल करने से पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारी बेसिक टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. सोल्यूशन निकालोगे आप इसका, यू विल गेट 68,900. क्लियर है? नाउ कम एट दिस पार्ट. यहाँ पे मैंने क्या निकाला हुआ था? मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम, और क्वेश्चन में पूछा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. हमारे पास जो फैक्टर इनकम को ऐड करके आता है वो क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC. सिर्फ डोमेस्टिक नेट प्रोडक्ट यानी कि FC का MP में कन्वर्जन करना है. एज आई टोल्ड यू, जब आप FC का MP में कन्वर्जन करते हैं तो क्या करते हैं? NIT ऐड. समेशन से हमारा NDP एट MP आया था. ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू थी नेट डोमेस्टिक इनकम की, मैंने आपको बताया था ये नेट डोमेस्टिक इनकम क्या है? ये नेट डोमेस्टिक इनकम आपकी क्या है? NDP एट FC. ये ग्रॉस डोमेस्टिक क्या था? GDP एट FC. अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं? NNDD, क्योंकि नेट ही निकालना है, सिर्फ हमें NDP एट FC को NIT में ऐड करना है. तो NDP एट FC क्या है? 62,000. 62 यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, 62,000 प्लस NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. आप प्रॉपर फॉर्मेट में पुट करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स है 9,000, सब्सिडी है 1,800, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 62,000. और देन सेम कैलकुलेशन वे 62,000 प्लस NIT इज योर 7,200. सी 9,000 में से 1 गया 8 और ये आ गया 7,200. दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7,200 है ये, 200, देन 2 और 7 9 6. डोमेस्टिक इनकम इज योर 69,200 करोड़ रुपीज. क्लियर है? नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे. आपका आंसर आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बता देना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी अपलोड कर दूंगी.
दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।